Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to read newspapers and make notes out of it. It is a very important question faced by many UPSC civil service aspirants. Let's get started. So rules to keep in mind. Keep your syllabus in front of you all the time. Choose any one of the newspapers, The Hindu or The Indian Express. And there are two ways that you can make notes: offline on A4 size sheet and online on apps like Evernote or Notability. I'm sure many of you must be having the question, syllabus की क्या ज़रूरत है? Well, I've explained it with a couple of examples. Now here you can see an article from 19th of February 2021, the Hindu newspaper, and it says strong India-Australia partnership will play key role in shaping post-COVID world, says our Prime Minister Narendra Modi ji. अब इसे क्यों पढ़ना है? What will validate this? That's our syllabus. यहाँ पे हमारे syllabus का रोल आता है to decide whether we have to read this article or not. जब syllabus सामने होगा तब पता चलेगा कि जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन नाम का एक टॉपिक है जिसकी वजह से यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड यू हैव टू नोट इट डाउन. इसी तरह से आप अलग अलग हेडलाइंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि सिलेबस में इस हेडलाइन से रिलेटेड कोई टॉपिक मेंशन है क्या, एंड तब डिसाइड करेंगे कि आपको वो हेडलाइन पढ़नी है या नहीं पढ़नी है. Now let's look at the second article, dizzying climb on retail inflation. देखते ही समझ आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेबस सामने होगा तब पता चलता है कि ये जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड देन यू विल गो अहेड एंड रीड दिस आर्टिकल. Now let's talk about this one, freedom and security on social media platforms operating in India. Now you can see it's talking about cyber security, then it's also talking about freedom of speech, which is an important part of polity. So ये polity और science and technology जो GS paper 2 के important topics हैं उससे related है, right? So ये तो पढ़ना ही है और यहाँ पे opportunity मिलती है interlinking करने की, polity को science के साथ link करके पढ़ने की. इसी तरह के सवाल एग्जाम में, मेंस में, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. यू हैव टू इंटरलिंक एंड क्रिएट योर नोट्स अकॉर्डिंगली. रिमेंबर दिस, इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स स्मार्टली इज इक्वल्स टू इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी. नाउ लेट्स लुक एट वन मोर आर्टिकल ऑन लेबर रिफॉर्म्स, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर बोथ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2. Talking about technological advances in labor reforms, it is a part of science and technology. Another article on LAC, okay, order at the border on disengagement at the LAC. Now here security and international relation दोनों से related topic है ये, ठीक है. So international relation is part of GS paper 2, security GS paper 3. So now you know syllabus कितना important है, और every single day आपको आपके preparation में syllabus को अपने साथ रखना है, अपने सामने रखना है और बार बार refer करना है. Now coming to how to prepare notes out of newspapers. बहुत challenging लगता है काफ़ी लोगों को, but दोनों online offline notes बनाना बहुत आसान है if you follow this structure, ठीक है. Now look at this particular photo right here. It is a snapshot of the notes that I have prepared from the newspaper. मैंने headline लिखा है, ठीक है. In the main part I have written facts और analysis, जो भी important points मुझे लगे, और ये particular जो note है मैंने Notability ऐप पे बनाया है, online बनाया है. आप बिल्कुल ऐसे ही structure wise अपने offline notes भी बना सकते हैं, okay? Now let's look at the structure. Offline online दोनों में same pattern आपको follow करना है, ठीक है. पहले headline आप लिखेंगे. The main part or the main body of your notes should contain of facts and analysis. आप डायग्राम्स बना सकते हैं, आप चार्ट्स बना के लिखे, राइट, एंड यू कैन यूज पिक्चर्स. सिमिलरली ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है, आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर का, पिक्चर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके नोट मेकिंग को इफेक्टिव बनाता है और क्विक भी बनाता है, ठीक है. लेकिन अगर आप यही चीज ऑफलाइन नोट्स में करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, बट इट इज अ लिटिल टाइम टेकिंग. दूसरा बेनिफिट है, ऑनलाइन आप ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से अपने नोट्स को कर सकते हो. ऑफलाइन एवरी सिंगल डे आपको फाइलिंग करनी पड़ती है अपने A4 साइज शीट्स की.
ऑनलाइन आप गए, यू कैन सी हियर हाउ आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स एंड इफ आई वांट टू अपडेट समथिंग तो मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जाऊंगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाऊंगी एंड वहां पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, कोई नया न्यूज आया, मुझे कुछ अपडेट करना है तो ऑनलाइन आसानी से हो सकता है। ऑफलाइन एक नई शीट लो, उसको फिर से ऑर्गेनाइज करो, तो जितना आप टाइम बचाते हैं ऑनलाइन उतना ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। दैट इज इट। और ऑनलाइन नोट्स मेकिंग में भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करना। आप हेडिंग को लिखोगे, फैक्ट्स एंड एनालिसिस को लिखोगे एंड कंक्लूजन में यू विल राइट सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, अगर कोई इशू रिलेटेड टॉपिक है, या फिर आप वे अहेड लिखोगे, आगे क्या किया जा सकता है सिचुएशन को बेटर करने के लिए, ये पॉइंट्स लिखोगे। दैट्स इट। That is it for today. I hope it was a helpful video. Please do not forget to like, share, comment and subscribe to the YouTube channel. I'll see you in the next one.